Good evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to all of you to this insightful session titled Understanding the Gold Ecosystem. Today's session is designed to help us understand the entire gold ecosystem, from mining and refining to markets and investments, technology, sustainability, and future trends. Also, we will explore how the gold ecosystem connects various stakeholders: miners, refiners, traders, financial institutions, regulators, and consumers, and how the global trends such as digitalization, sustainability, and market volatility are reshaping the space. This discussion will not only give us insight into present landscape but will also help us understand where the gold industry is heading in the future. To guide us through this fascinating and complex ecosystem, we are privileged to have distinguished speakers here today. Our speaker today brings with them extensive experience and expertise in the gold industry with strong understanding and global trend. Please join me in welcoming our guest and moderator, Mr. Maulik Shah. So please come on the stage. Mr. Maulik Shah is the co-founder and CEO of Almis Risk Consulting LLP. He has 27 years of experience in senior financial and treasury role in Mahindra and Mahindra and Rosie Blue, which is a leading diamond company. He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and CFA. He has represented various panels on foreign exchange treasury and risk management. At Almas, he is responsible for executing business plan, creating growth, opportunities, and building relationship. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause for Mr. Maulik Shah. I request our next speaker, Ms. Priscilla D'Souza. Please come on the stage, ma'am. She is working with Dwellex India Private Limited since 2001. She is a CA by profession, taking care of the finance team of the Dwellex and seeing it grown into what it is today and growing strong. Today, she is here to share best of her knowledge with all of us. And finally, I request to come on the stage Sri Nirakar Chand. Sir, please come on the stage. Sri Nirakar Chand worked in SBI for 27 years. He handled mostly corporate credits and gold businesses. He was instrumental in reviving the gold business in SBI and setting up its process and systems. After leaving SBI, Sri Chand set up the gold business in Diamond India Limited as a nominated agency. He has been working with DIL as its CEO for the last 15 years. Under his leadership, DIL is focused on providing service to small exporters all over the country. Ladies and gentlemen, a big round of applause for all our speakers. You may take the stage now, sir. Hello. So good evening, everyone, and thank you, GJPC, for this great opportunity. A, to connect with the members, and B, also to be with the trade, the manufacturers, the retailers, especially in an area which is of utmost importance, and that is the gold price volatility. Now, the topic of this session for the next 1 hour, understanding the gold ecosystem. Before I begin the panel discussion with the expert members here, there is a brief presentation for about 10 to 15 minutes. What I want to kind of set the background before we get into a panel discussion is what this today's topic is all about. It is more of a contextual because understanding the ecosystem, most of you already heard the previous panel which gave a forward-looking guidance, the market outlook. This session, in the next 1 hour deliberation, we are focusing more on, given the volatility, given the price risk,
given the market the way it is, and given the future predictions of the gold price and the silver price, how as a businessman, be it a manufacturer or a retailer, I manage my business. Now, what are the key components that I need to be able to do that? A, understand the ecosystem, which means understand the supply. We heard from Vijay Exports quite a few things about the demand side. Now, we have a panel speaker who will throw some light on the supply side, and that's Chandbai for us. And the another key aspects, given the volatility and the risk that we have, how as a businessman do you protect your margins? And for which, to share that insights, we have one of the leading jewelry exporters, Chief Financial Officer Priscilla, who's here with us. So this slides, if you're ready, we can, Himita, we are, yes. So let me begin this presentation as to why this really matters. So already, I know some bit of a background which was given in terms of, the gold ecosystems has many nuances to it. It's a wider topic. We will try and keep the discussion focused more on the risk management practices, understanding the supply and the demand side dynamics, and that helping me as a businessman to manage my business better. Now, in between, I will take the liberty to use or speak both in Hindi and English for the benefit of the participants. Let's understand already some of the points which was covered earlier. As India, हम लोग प्राइस डिटरमाइन नहीं करते हैं, हम लोग प्राइस टेकर है. ग्लोबली प्राइस डिसाइड होती है प्रेशियस मेटल्स की, गोल्ड हो, सिल्वर हो. इंडिया में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारी खुद की माइंस नहीं है. सो इंडिया इज ऑलवेज अ प्राइस टेकर. एंड हमारे ज्वेलरी बिजनेस के लिए हमारे लिए वो रॉ मटेरियल भी है और हमारे लिए वो इन्वेंट्री भी है. नाउ दिस आर द टू की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. अगर आप ज्वेलरी बिजनेस में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, रिटेल हो, समझना जरूरी है. एंड हमारा फोकस है ना तो स्पेकुलेशन करना, वोलेटिलिटी को मैनेज करना, मार्जिन को प्रोटेक्ट करना, एंड दैट इज वेयर द की एसेंस लाइज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द गोल्ड प्राइस रिस्क. ऑलरेडी आप मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि पिछले 3 साल में आई थिंक गोल्ड प्राइस हैज अप्रिशिएटेड 154%. मतलब अगर ये मेरी आज रॉ मटेरियल है तो मुझे वो एक्सपेंसिव लग रही है, अगर वो मेरी इन्वेंट्री है तो मुझे उसका वैल्यूएशन गेन डेफिनेटली इज हेल्पिंग मी. तो ये बैलेंसिंग एक्ट है, वो बिजनेसमैन हमेशा एक जगल करते रहता है कि आज रॉ मटेरियल मुझे बाय करना है तो एक्सपेंसिव हो गया है, बट अगर मेरे पास उसकी इन्वेंट्री है तो डेफिनेटली मुझे उसको अप्रिशिएट हो रही है. नाउ वेयर द प्राइसेस आर सेट, वी हैव एन LBMA, COMEX. इट इज ड्रिवन बाय मेनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. फैक्ट ऑफ द मैटर इज DJPC के जितने भी सारे मेंबर्स है, 10,000 मेंबर्स, वो सभी अग्री करेंगे हमें प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. एंड अगर हमारे कोई भी एक्शन से प्राइस की मूवमेंट, जैसे सुरेंद्र भाई ने बहुत क्लियरली बता दिया, हम बोलते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ गई या कम हो गई, उससे प्राइस को कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है. अगर ये रियलिटी है तो हम अपने मार्जिन को मैनेज कैसे करें? चॉइस क्या बची है हमारे पास? वो है एब्जॉर्ब करो या मैनेज करो. बस ये 2 तरीके हैं. वो बैकग्राउंड में लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली द गोल्ड इकोसिस्टम. दिस पर्टिकुलर फर्स्ट एलिमेंट विच इज इम्पोर्ट्स वाया बैंक्स एंड नॉमिनेटेड एजेंसी, उसके लिए चांद भाई हमारे साथ है. इसके लिए मैं नेक्स्ट पैनल डिस्कशन में ये टॉपिक कवर करूंगा. चांद भाई हमें समझाएंगे कि आज गोल्ड की इंडिया में सप्लाई कैसे होती है. जो 14 नॉमिनेटेड एजेंसी है, डायमंड इंडिया इज वन ऑफ देम. वी विल डेलिबरेट बेटर ऑन दैट. वी हैव अ मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, रिफाइनर्स ऑल पार्टिसिपेटिंग इन दिस एंटायर गोल्ड इकोसिस्टम. हम प्रिसिला से समझेंगे कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप रिटेलर हो, तो गोल्ड प्राइस को कैसे मैनेज किया जाए. क्विकली समझ लेते हैं गोल्ड प्राइस की रिस्क. अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो क्या आप डील कर रहे हो? एक है कि अगर आपने ज्वेलरी मैन्युफैक्चर की है और प्राइस उधारी में बेची है. अगेन मैं एक रेफरेंस पिक करता हूँ प्रीवियस सेशन से, अगर आपने वो अटेंड किया है तो, कि एज अ ज्वेलर आप कोई भी कमोडिटी को उधारी में नहीं बेच सकते. अगर आपने ज्वेलरी मैन्युफैक्चर की है और प्राइस कट करके उसको उधारी में बेचा है, जब तक आपको पैसा नहीं मिल रहा है और आपने गोल्ड बाय नहीं किया, वो आपका रिस्क है. या तो उधारी में बेचना बंद करें या फिर ये जो इंटरिम पीरियड का रिस्क को मैनेज करें. सो दैट्स द बिगेस्ट रिस्क विच यू एज अ मैन्युफैक्चरर आर कैरिंग इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग. उसमें भी
दो कैटेगरी आएगी। अगर आप ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट्स हो, सीब्स में से ऑपरेट करते हो, तो अलग तरीके से मैनेज करोगे, बिकॉज आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग है। आपको ऑर्डर आता है कस्टमर से, आपको प्राइस फिक्स करके ऑर्डर आता है, और आपको गोल्ड बाय करना होता है। तो वो पीरियड आपके लिए रिस्क है, वो एक मैन्युफैक्चरर कैटेगरी हो गया। अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरर हो, मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए गोल्ड बाय किया और प्राइस बाद में कट किया, तो वो इंटरिम पीरियड का रिस्क आपको मैनेज करना है। सो दिस आर द टू कैटेगरीज वेयर यू विल हैव टू मैनेज योर प्राइस रिस्क। अगर आप रिटेलर हो, रिटेलर्स के चैलेंजेस अलग है। रिटेलर्स आर मोर कंज्यूमर फेसिंग, फ्रंट फेसिंग। प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होती है, दे ऑल हैव एक्सपीरियंस। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स की अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर उनको एक ग्रोथ मिला है रेवेन्यू में, बट वो वैल्यू टर्म्स है। बट अगर आप वैल्यू और वॉल्यूम दोनों को अलग अलग करोगे तो एक्चुअली वॉल्यूम में ड्रॉप है। तो ओवरऑल रेवेन्यूज हैव गॉन अप बट द वॉल्यूम्स हैव कम डाउन। व्हाई? बिकॉज प्राइसेस हैव गॉन अप एंड द कंज्यूमर डिमांड्स हैव एक्चुअली कम डाउन। उनके लिए चैलेंज है, अगर मैं जो इन्वेंट्री होल्ड कर रहा हूँ वो इन्वेंट्री को रीप्राइस अगर आज के भाव से करे तो डेफिनेटली मुझे फायदा है, अगर मैंने उसको हेज नहीं किया तो। बट व्हाट इफ द प्राइस कम्स डाउन? सो दे एक्चुअली कैरी द रिस्क ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द इन्वेंट्री विच दे कैरी, एंड दैट इज द रिस्क ऑफ रीवैल्यूएशन। बट उससे भी और एक ऑपरेशनल रिस्क है। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जिससे हम बात करते हैं, उनकी एक प्रैक्टिस है कि जितना आज माल बेचा उतना खरीद लिया। दैट्स हाउ दे मैनेज, विच इज रिप्लेनिशिंग द स्टॉक। हो सकता है कि उसमें भी टाइमिंग मिसमैच हो। शायद पहले के टाइम पे ये टाइमिंग मिसमैच इतना मायने नहीं रखता था, जब भी प्राइस उतनी वोलेटिलिटी नहीं थी। बट आज अगर आपने प्राइस कट कर दिया है और आपकी इंटरनल सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कितना टोटल माल बिका है और मुझे उसको बाय करना है, एक दिन गया, 2 दिन गया, हो सकता है कि ये 1-2 दिन में भी आपको ये मार्जिन पे इम्पैक्ट हो सकता है अगर गोल्ड प्राइस ऊपर चला गया तो। सो ये सिनारियो में आप अपने इंटरनल सिस्टम्स को, प्रोसेस को और हेजिंग मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रेंथन करें। बार बार प्रिंसिपल यही आता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट के प्राइस मूवमेंट पे, बट डेफिनेटली हमारा कंट्रोल है उनके रिस्पॉन्सेज पे। कैसे हम रिस्पॉन्स करें, कैसे हम अपनी इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। जनरल मिथ जो हम बार बार सुनते हैं, जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब भी हम हेजिंग की बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हेजिंग इज अ स्पेकुलेशन। बड़ा बड़ा पैराडॉक्स है। हम हेजिंग की बात करते हैं मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए, और लोग बोलेंगे हेजिंग इज अ स्पेकुलेशन। और एक मिथ भी है कि गोल्ड प्राइस तो हमेशा ऊपर जाएगा। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री है और अगर हम बोले कि आप गोल्ड वो इन्वेंट्री को हेज करो क्योंकि रिस्क के नीचे आने का, तो बोलते हैं प्राइस तो ऊपर ही आ रहा है। आप देख लो, पिछले 10 साल का ट्रेंड देख लो, 20 साल का ट्रेंड देख लो। बट हो सकता है कि आपके आने वाले साल में मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई और आपके गोल्ड इन्वेंट्री पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो जब तक आप क्लोजली हेल्ड हो तब तक ठीक है, बट अगर आपका बाहर का इन्वेस्टर्स आए, आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, तो ये क्वेश्चन जरूर आपके इन्वेस्टर्स से आते हैं कि क्या आपकी पॉलिसी है। तो ये डेफिनेटली है कि एक मिथ का बैकअप भी है कि भाई गोल्ड प्राइस का ट्रेंड ऊपर ही रहा है, बट टू ऑलवेज बिलीव दैट दिस इज हाउ इट विल बी, it probably from a business margin protections, it may be against that interest. Overall जब भी हम हेजिंग की बात करते हैं और हेजिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो चाहे आप लार्ज ज्वेलर्स हो या स्मॉलेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हो, परसेंटेज ऑफ मार्जिन हमेशा यूनिफॉर्म है। तो ऐसा नहीं है कि हेजिंग सिर्फ लार्ज ज्वेलर्स को चाहिए। आप छोटे प्लेयर्स भी हो, मतलब छोटे, चाहे वो 1 किलो का काम कर रहे हो, 100 किलोस का काम कर रहे हो, 1 टन का काम कर रहे हो, प्राइस परसेंटेज टर्म में सबको सही एक ही मात्रा में इम्पैक्ट करेगा। तो जरूरी है कि आपके इंटरनल सिस्टम्स, प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होने हैं। वेरी क्लियरली एक प्रिंसिपल की अगर बात करें, हेजिंग आपको क्यों करना चाहिए। हेजिंग करने से आप अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने कैश फ्लो की सर्टेनिटी को लेके आ रहे हो, एक प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो एक प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो आप डिक्लेयर कर सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो। ये एक सिंपल प्रिंसिपल्स है। ये जरूरी इसके लिए भी है कि गोल्ड अप्रिसिएशन है, 1 साल है, शायद नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगा। बिजनेस है, बिजनेस का मार्जिन विदाउट गोल्ड अप्रिसिएशन इज समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग अ बिजनेस। हेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर हम और डीप में चर्चा करेंगे नेक्स्ट पैनल सेशन में, जिसमें प्रिसिला विल शेयर हर एक्सपीरियंस। बट इंडिया में आप आज की तारीख में
दो प्लेटफॉर्म है जिसमें गोल्ड मेटल लोन है, आप बैंक के पास से लोन उधारी में ले सकते हो, जिससे आपका एक हेजिंग प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं। एक MCX है, और जो प्लेटफॉर्म बिल्ड हो रहा है, जैसे रंजीत सिंह ने प्रीवियस सेशन में बताया, विच इज़ IIBX गिफ्ट सिटी। आप गिफ्ट सिटी में भी अपने, स्पेशली इफ यू आर एन एक्सपोर्टर एंड यू आर कंसर्न विद द डॉलर गोल्ड ओनली, नॉट द रुपी गोल्ड, दैट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो एंड हेज योर रिस्क। गिफ्ट सिटी मैटर स्पेशली सीब्स बेस्ड जितने भी अपने एक्सपोर्टर्स हैं, इधर जो भी एग्जिबिटर्स है और उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है, उनके लिए गिफ्ट सिटी इज़ डेफिनेटली मच मोर एफिशिएंट, बिकॉज MCX में रुपी गोल्ड है, आपके लिए 2 लेग हमेशा करना पड़ता है, विच इज़ अ रुपी गोल्ड एंड डॉलर रुपी। बट अगर आप गिफ्ट सिटी में जा रहे हो जिसमें डॉलर ट्रेडेड है, वो आपके लिए ज़्यादा और एफिशिएंट है। These are some of the best practices, and again we will get into this detail in the panel discussion as to what good hedging practice looks like. And once you have built any strong hedging process on a standard well-defined SOP, एक ही प्रिंसिपल है कि आप उसको फॉलो करें कंसिस्टेंटली। नाउ दैट इज व्हाट इज द गुड हेजिंग प्रैक्टिस विल ऑलवेज एडवोकेट फॉर, एंड ये करने से आप इंश्योर कर रहे हो कि मेरी बिजनेस मार्जिन को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, चाहे गोल्ड की प्राइस वॉलेटिलिटी कुछ भी हो। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द गुड वेल स्ट्रक्चर्ड हेजिंग प्रोसेस एंड एज अ GJPC, अगेन मैं ये प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि GJPC एज अ कंसल्टेंट टू GJPC, one of the things that we always strive for is the business that you are in, हम उसके रिलेटेड जो भी अलग अलग हिस्सों में मेंबर्स को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लेके, हेजिंग अवेयरनेस के बारे में बात करके, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करके, ये हमारा एक उद्देश्य रहा है। एंड वो प्लेटफॉर्म से ही आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में अबाउट द हेजिंग प्रैक्टिस। These are the hedging tools that we talked about, and my closing thoughts. Jewelry margins are designed in the factory but protected through disciplined gold price risk management. With this, we'll switch over to the panel discussion. If you can just help me set that up. So I will begin by placing the question, and as the team prepares for the setup, हमने बात की गोल्ड इकोसिस्टम में जिसमें एक सप्लाई सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एक ब्रीफ में बताऊंगा और चांद भाई उसके ऊपर एक्सपांड करेंगे कि इंडिया में अगर आप गोल्ड की सप्लाई को देखेंगे, इंडिया में देयर आर 14 नॉमिनेटेड एजेंसी थ्रू विच गोल्ड कैन बी सप्लाइड इन द कंट्री। डायमंड इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द नॉमिनेटेड एजेंसी, एंड देयर आर अदर बैंक्स who supply. They are the provider of gold to all the players in India. And first question which will be for चांद भाई उसके ऊपर आप एक्सपांड करना, क्या आज की तारीख में ये जो भी गोल्ड पॉलिसी रही है फॉर सप्लाई ऑफ गोल्ड टू इंडियन मैन्युफैक्चरर थ्रू नॉमिनेटेड एजेंसी, वो आप डायमंड इंडिया का उसमें क्या रोल है, ये सिस्टम जो भी कितने भी साल से चल रही है, हाउ एफिशिएंटली इट हैज बेनिफिटेड द प्लेयर्स, और उसके रिलेटेड आपके कुछ व्यूज है और आपके जो इनसाइट्स है, डू शेयर विथ अस। या दे विल जस्ट अरेंज टू ब्रिंग आउट। That also is not related to manufacturing or sourcing or mining. London is not the hub, but it is a trade center. So there all the demands and supplies are aggregated to determine what is the LBMA price. So for quite a few years to come, price discovery will remain a challenge for IIBX or for that matter any other entity in India. And coming to the challenge of IIBX, in my personal opinion, of course IIBX management and the authorities will be looking at it. In my personal view, that IIBX has to look at two things. If it has to compete with the nominated agencies, then it has to match the convenience given to the consumers and even exceed that kind of a convenience. Otherwise, why the consumers would opt for some model over another model? So there are two things which they have to look at. One is the business model. IIBX was modeled after Shanghai Gold Exchange. But in Shanghai Gold Exchange, you have the banks as the participants.
So banks view gold as a financial product, and they develop the gold ecosystem as a financial product and providing the international linkages. All kinds of financial products are futures, options, everything is made available to the community. But IIBX, on the other hand, is looking at the platform as a commodity import platform, not as a financial product platform. So there is a big difference between a commodity import channel and a financial product platform. That is why IIBX has a long way to go in proving itself as an exchange. Second is the operational efficiency. This is for the consumers. If there is a consumer in Chennai, he would not like to pay money and wait 3 days. Wait 3 days to get his gold from Gift City. So the distribution has to be nationwide and doorstep availability has to be there. Today, if he prices with the DIL, we will give him the delivery within one hour. So that means the time is critical for his operation. He cannot wait for IIBX model to work. So IIBX model has to work to his expectation, not the other way around. So these are the Got two it. challenges for so far as I see. Got it, Chandra. Priscilla, for your operations, especially given that you have an export-related price risk, Gift City offers that solution. Have you been able to use it? Actually, Gift City is a very good option for us. Maybe the net cost, like I mentioned, will go off, but at least we will be hedged in dollar against the risk of, not dollar, but the gold price that internationally runs is in dollar, and we will be hedging in dollar in case of IIBX. But we have not been able to do it, unfortunately. Like you mentioned, there are no volumes, so there is no, there is nothing that we can do about it, and that is why we have not been able to start anything so far. And as far as the gold sourcing is concerned, is that something that you see that's happening generally from IIBX, Gift City? They have been saying that they are going to start a vault in SEEP so that we can immediately start buying and take delivery. We have a session on Monday itself. So let's see, hopefully we are seeing, going to see some movement on that, but so far nothing. Got it. I will have a last question for both of you. And in the meantime, if any one of you have any questions, do raise your hands. Mike will come to you. The last question, first Priscilla, if I am a manufacturer, I am a exporter, manufacturer, all the local manufacturer, what is your advice with respect to the hedging mechanism or the risk management practices? I would suggest, like what we did, first thing, assess your risk. Find out where are your trigger points and manage your risk. Do not keep the metal open because the price volatility is too high and you are easily going to lose money. I know it is very lucrative and people have been saying it is going in one direction, so if you just do nothing, you will make money, but you do not know when it will reverse. So our suggestion, that's what we have been doing. We have been hedging, and for a good night's sleep, I think that's what is important. Hedging में also cash margin, liquidity, that is also people's concern कि काफ़ी liquidity drain होता है hedging करने की वजह से M2M calls भी आते हैं. So Yeah, anything, that is true, but that is still manageable because it is not the 100% that we have to do. Like the traditional jewelers have been buying back to back when they are selling. Here, you have to give a part of the money. Yes, there is a strain on the working capital, but that is limited to the margins. And when you have a sell position, there is a net off. So I think it is manageable. We have been able to manage with MCX rather than paying 100% for the metal and blocking the complete working capital. okay. Chand bhai, anything from your side as a community of manufacturers? कुछ कहना चाहेंगे as a closing remark? The times are tough. The prices have gone up like crazy. So there is a bit of need for belt tightening. At every point, probably the manufacturers have to look that their margins are safe. You may have a margin of a 15%, but the price is moving 150%. So it will kill the business. So that is where this session would be is relevant so far as the hedging and other things are concerned. So please take care of the margin.
And if you are into speculation, then this is a different ball game. It is not a jewelry part of it. Okay, thank you. थैंक यू चांद भाई. किसी के लिए एनी क्वेश्चंस? वन हैंड हियर. या यू हैव अ माइक? ओके. Hi Priscilla. The question here is, my name is Pratik, and as we all know, Jewelex is one of the leading manufacturers. And when we go in the market, people see what is the best practice that Jewelex has. As you mentioned, you've been hedging for the last 5 years. So if someone wants to start hedging, okay, what are the A, B, C for them to start? Should do you have a policy? You have an SOP? आपका process driven है, view driven है? What is your review mechanism? If you can just give a on the ground, someone wants to start, what is your direction as one of the leading jewelry manufacturers in Zeeps? So like I mentioned, you have to do a complete analysis of your existing business, find out what are your trigger points, make your policy, but that policy strategy that you make shouldn't be shelved and make policy बना दिया अब इसको फॉलो करते रहो आँख बंद करके, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू रिव्यू इट पीरियडिकली, क्योंकि बहुत बार योर इंटरनल थिंग्स डोंट चेंज बट मार्केट चेंजेस अलॉट. सो यू हैव टू कीप ऑन रिव्यूइंग दैट पॉलिसी पीरियडिकली, दैट यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ वॉट इज़ द करेक्ट पीरियड यू थिंक, एंड वंस यू डिफाइन दैट यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप फॉलो करो. बिकॉज लाइक एवरीबडी हैज़ बीन मैंशनिंग, स्पेकुलेशन बहुत इसमें, मतलब इट इज़ वेरी टेम्पटिंग. सो आप कभी वो हेजिंग से स्पेकुलेशन में चले नहीं जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा. इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर यू स्टिक टू योर पॉलिसी, यू एडर टू व्हाट यू हैव रिटन एंड मेक श्योर कि आप उसको रिव्यू करें. हो सकता है तो एक आध पर्सन डेडिकेटेड इसके पीछे रखो, आपसे नहीं हो सकता है तो किसी थर्ड पार्टी को दे दो जो इसको मैनेज कर सके. बट इसको एज अ साइड में चल रहा है ऐसा नहीं करना, बिकॉज अभी रिस्क बहुत हाई है, स्टेक्स बहुत हाई है इसमें, बिकॉज इट्स बिकम अ the composition has become quite significant, and that is why you have to make sure that you keep an eye on the risk that is happening there. Thank you. आप पॉलिसी में अलाउ करोगे व्यू लेने का? हमारे पॉलिसी में नहीं, we don't take a view, we do hedging, there is no scope for view. We feel that is a little bit of speculation if you start doing that. That's our view. बट व्यू में थोड़ा बहुत तो अपॉर्चुनिटी कभी कभी ले सकते हैं. मतलब आप वो बिजनेस में हो तो व्हाट इज हार्म एज लॉन्ग एज यू हैव अ कैलकुलेटेड. नहीं, हार्म कोई नहीं है उसमें मौलिक. द प्रॉब्लम इज कि एक बार व्यू लेते हैं, अगर उसमें हमको कभी प्रॉफिट हो गया तो देन लगता है अरे ये तो साइड में पैसे बन रहे हैं, व्हाई नॉट कंटिन्यू डूइंग इट. तो दैट इज़ द रिस्क एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव अ वेरी क्लियर स्टैंड कि हम हेजिंग करेंगे और हमारा जो SOP या स्ट्रेटेजी जो बनाई है उसको स्टिक रहेंगे. वी विल नॉट मूव फ्रॉम इट. तो देर आर अपॉर्चुनिटीज़, वी डू टेक, आई मीन दोज अपॉर्चुनिटीज़ पे हम भी अभी जाते हैं. पहले हमको लगता था हेजिंग मतलब जो ऑर्डर आया उसके सामने हेज कर लो एंड क्लोज करो. तो उसके बियॉन्ड देर वर इन बिटवीन अपॉर्चुनिटीज़. जैसे आप MCX सपोजिंग गोल्ड मेटल लोन ले रहे हो, तो आज गोल्ड मेटल लोन को रीपे कर दो, MCX पे अपॉर्चुनिटी है, बाय कर लो. पहले हम उसको टच भी नहीं करते थे, बिकॉज हमने जैसे बताया 5 साल पहले ही शुरू किया था. तो हमको लगता था जो है उसको करो, पहले इसको ठीक से करो. अब 5 साल के बाद हम थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ ठीक है अब हमको थोड़ा समझ में आ रहा है. तो ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं तो हम स्विच कर लेते हैं. तो सपोज़ मार्केट में प्रीमियम डिस्काउंट है, प्रीमियम है, जो भी है, तो GML रीपे कर लो, WCDL या वर्किंग कैपिटल CC लोन ले लो और मार्केट MCX कर लो. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें अभी हम करते हैं, बट बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करके करते हैं. पहले तो बिल्कुल नहीं करते थे, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है तो थोड़ा बहुत करने लगे हैं. सो दीज आर अवेलेबल, बट बहुत केयरफुल रहना है, अपने पॉलिसीज़ को स्टिक रहना है, डोंट मूव अवे फ्रॉम दैट. जो अपॉर्चुनिटी एक सेफ दिख रही है मार्केट आर्बिट्राज को लेके, वो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, बट नॉट द व्यू बेस्ड. नो, हम व्यू बेस्ड नहीं करते. हम अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो ज़रूर करते हैं. थोड़ा बहुत प्रॉफिट सेंटर जैसा बना लिया है, बट स्पेकुलेशन व्यू बिल्कुल नहीं जाते. सो एक ही चीज़ मैं जो क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जो प्रिसिला ने भी बताया कि आज की तारीख में भी मार्केट में जो 2 हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक है डिसीजन लेना, हेज करना. सेकेंड है हेज करने में 2 इंस्ट्रूमेंट है. एक GML से कर सकते हो अगर आपको इन्वेंट्री को हेज करना है, या तो MCX में आप सेल कर सकते हो. तो मार्केट में आज एज वी स्पीक टुडे MCX प्रीमियम्स आर ऑलमोस्ट एट 15%. सो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या आप इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो और आपको हेजिंग करना है,
और आपने GML से हेजिंग किया है उसका, जिसमें आपका 2 या 3% का कॉस्ट है, आप बोलोगे कि नहीं 7-8% में मेरी CC कॉस्ट चल रही है, तो मैं क्यों रुपी लोन लूँ। बट ये मार्केट में आप अगर 7-8% से लेके GML को रिपे भी करते हो और सामने MCX को एज करते हो, तो देर इज़ अ एडिशनल प्रीमियम ऑफ 10% विच इज़ रिस्क फ्री, जिसमें कोई रिस्क आप नहीं ले रहे हो, ये मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो एक है डिसीजन लेना, हेज करना, दूसरा है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि आप भी वो बिजनेस में हो जिसमें ऑप्टिमाइजेशन एफिशिएंसी ऑल्सो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट इन योर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो पक्का आपको करना है, स्पेकुलेट नहीं करना है, बट बिजनेस को एफिशिएंट पक्का बनाना है, मार्जिन को प्रोटेक्ट करके जो भी अपॉर्चुनिटी है वो पक्का उसको लेने हैं। ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके रिलेटेड आई थिंक मौलिक, यू आर राइट, वो बराबर जो आप बोल रहे हो सही है कि हेजिंग करते वक्त अगर ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो अपने को ग्रैब कर लेनी चाहिए, बिकॉज देर इज़ नो रिस्क एंड यू आर इन टू योर हेजिंग, यू आर नॉट गोइंग इन टू स्पेकुलेशन, सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक बेस्ट आउट ऑफ वॉट एवर इज द available options. Yeah. Any other questions before we close? Yes. My name is Ankit Sharma. I'm part of Albus Risk Consulting. This question is to Priscilla. So Priscilla, you are probably in 5% of corporates who are hedging, and there are a large number of manufacturers who are still not, they have not started using MCX or IBX or any other hedging instrument for that matter. So if you can throw some lights, why are they not part of that ecosystem, and what would you like to tell them? I am not sure why they are not. Maybe उनको अभी तक कोई लॉस हुआ नहीं है and they are waiting for it to come. तो जल्दी, जितनी जल्दी वो उसको समझ लें एंड हेज कर ले, उनके लिए बेटर है। अगर वो स्पेकुलेशन नहीं बोलूँगी, अगर वो बहुत ज़्यादा, जैसे अगर एग्जांपल दूँ तो लोकल मार्केट में लास्ट ईयर हमने भी हेजिंग किया, बैक टू बैक हम लोग को जो शिपमेंट करते थे हम हेज करते थे, तो वी लॉस्ट मनी बिकॉज अगर ओपन छोड़ते तो और ज़्यादा पैसे बन जाते। तो अगर कोई रिस्क ले रहा है एंड उसको ज़्यादा पैसा बनाना है तो देन येस इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आप कुछ मत करो, ऐसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, आप ज़्यादा पैसे बना लोगे। बट जैसे सब बात कर रहे हैं कि अपने को अपने मेटल को प्रोटेक्ट करना है, वो मार्जिन का ज़रिया नहीं बनाना है। हम ज्वेलरी में हैं, हमको ज्वेलरी के थ्रू कैसे पैसे बनाएं उसके ऊपर फोकस करना है। तो इसी के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप हेज करो, और स्पेकुलेशन या ओपन हैंडेड रख के कमाना चाहते हो आपकी मर्ज़ी। जैसे मैंने पहले भी बताया, पीस ऑफ माइंड, रात की अच्छी नींद इम्पॉर्टेंट जिनको है उनको हेज कर लेना चाहिए। जिनको लगता है नहीं रिस्क है, मेरे को इसमें मज़ा आ रहा है, वो इसके मज़े ले सकते हैं। Got it. Thank you. Okay, so with that, thank you very much, Priscilla and Chand Bhai, for your insights, and thank you once again GJPC for organizing this and giving us this opportunity. Over to you. Thank you to our speakers for sharing such valuable insight and a perspective on this session. It has truly helped us to understand the journey of gold from the source to the market and beyond. On behalf of everyone, I would like to express my sincere appreciation for your contribution for this session. May I now request Mr. Ajay Pathak to kindly felicitate our speaker and moderator with token of appreciation. Mrs. Priscilla D'Souza, please step forward. Shri Nirakar Chand, sir, please step forward. Mr. Maulik Shah, please step forward. Ladies and gentlemen, with this, we come to the end of the session. Thank you to our speakers once again, and thank you to our audience to your attentive participation. Thank you so much.